السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ مہاراشٹرا میں مجلس کی کامیابی پارٹی کی عوامی مقبولیت کا ثبوت۔ بی جے پی ریاستوں میں مسلمانوں پر مظالم، تلنگانہ میں SIR کے لیے شعور آگاہی۔ صدر مجلس کی پریس کانفرنس۔ تعلیم ہی تمام مسائل کا واحد حل، تعلیم ہی معاشرے میں عزت و وقار کی ضامن۔ محبوب نگر میں مزید تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں گے، تعلیم کو حکومت کی اولین ترجیح۔ محبوب نگر میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ تلنگانہ بلدیاتی انتخابات کے لیے میونسپل کارپوریشنز کے میئر اور صدور نشین کے تحفظات کو خطیت، خواتین کو 50% تحفظات۔ حیدرآباد میئر کا عہدہ خواتین جنرل کے لیے مختص۔ اور ناچارم میں شراب کی گلاس کے لیے بھائی نے بھائی کو چھت سے نیچے پھینک ڈالا۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، VIP شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل VIP نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے بلدی انتخابات میں مجلس کی کامیابی پر مہاراشٹر کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔
दारुस्सलाम में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पार्टी के कायदीन, अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेटर्स और आम कारकुनों की अनथक मेहनत की सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस इंतखाबात में नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात पर उन्होंने कहा कि ये पार्टियां अवाम के खते एतमाद की तौहीन कर रही हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, MIM पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के MIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब MLC का, रियाजुल हसन अफंदी MLC का, और जितने हैदराबाद से MIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे XMLA जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना, और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मज़ाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। बीजेपी रियासतों में मुसलमानों की लिंचिंग और बुलडोजर की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उड़ीसा में शेख मोहम्मद मकानदार नामी शख्स को गांव रक्षकों ने हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें हलाक कर दिया। पुलिस ने इब्तिदान मकतूल और उनके गाड़ी ड्राइवर पर FIR दर्ज कर दिया था। काफी दबाव के बाद कातिलों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस तरह मध्य प्रदेश के बतूल में एक मुस्लिम शख्स नईम ने पंचायत की इजाजत से कबायलियों के लिए स्कूल तामीर किया। इस स्कूल पर बुलडोजर चला दिया गया। एक तो ये कि कल जो बालासोर उड़ीसा में SK मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने मॉब लिंचिंग के ज़रिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की, मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूं। और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। पहले एक FIR तो मरने वाले पर और ड्राइवर पर बुक हो गया, और बाद में जब मीडिया में से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहाँ जहाँ पावर में है वहाँ पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है
सो कॉल्ड गौ रक्षकों को वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकते, और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूँ। दूसरा यह है कि बैतूल में मध्य प्रदेश में एक नईम साहब जो अपनी ज़मीन पर आदिवासी बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक 20 लाख अपने पैसों का खर्चा किए, पंचायत से उनको एनओसी मिल गया, और जिस गांव में वो, जिस जगह पर वो अपना ये स्कूल खोल रहे थे ताकि बच्चे पढ़े, दलित आदिवासी, वहाँ पर सिर्फ 3 मुसलमानों के घर थे और एक झूठा रूमर उठा दिया गया। ये हमेशा ऐसी होता है कि कोई मुसलमान अगर घर बना रहा है या कुछ बिल्डिंग बना रहा है तो कुछ मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे, और फिर पंचायत के एनओसी रहने के बावजूद भी वहाँ पर जाकर उनकी इस स्कूल की जो बन रही थी इमारत, उसको तोड़ दिया गया। मैं इसका सख्त कंडेम करता हूँ कि आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। उत्तराखंड हुकूमत ने अक़लियतों पर मज़ालिम और हरिद्वार में हरी की पौड़ी में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी दस्तूर के खिलाफ है। उन्होंने त्रिपुरा के एक स्टूडेंट एंजल शामका के कुछ दिन पहले हुजूमी तशद्दुद हलाकत का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी की रियासतें मुल्क को किस तरह ले जा रही हैं, जहां कानून और दस्तूर की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैदराबाद के पुरानापुल इलाके में गुज़िश्ता दिनों पेश आए फ़िरक़ावाराना वाक़े पर उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्त अनासिर शहर के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी बिलखुसूस इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठाए। अभी तो हालात पुरअमन है, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ये देखना है और पुलिस के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनको देखना है कि हैदराबाद में रात में गड़बड़ क्यों हो रही। पिछले आप 3-4 साल के इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स निकाल के देख लो, ये रात में क्यों हो रहा भैया, ये इस पे फॉलो अप करना। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे, और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमज़ोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बैठ जाते खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना ज़रूरी है। ये कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद एक ब्रांड है, सिर्फ तेलंगाना के लिए, पूरे देश के लिए, और एक इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है। अब ये सरकार फ्यूचर सिटी को प्रमोट कर रही, ये इंसिडेंट्स क्यों होना, फिर नहीं होना चाहिए। तो इनको सोचना चाहिए गहराई से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से किए जा रहे SIR पर सदर मजलिस ने कहा कि इसके जरिए अवाम की शहरियत की जांच की जा रही है, जबकि ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं बल्कि ये वजारत दाखिला का काम है। उन्होंने कहा कि 2002 की इंतखाबी फहरिस्त में जिनके नाम हैं वो इलेक्टोरल सर्टिफिकेट के जरिए अपने अरकान ख़ानदान के नामों का इंदराज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में SIR का अमल होता है तो मजलिस इसमें मुकम्मल ताउन करेगी। नहीं, हम लोग, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग पूरी रहबरी करेंगे, पूरा हमारे से जो गाइडेंस होगा हम करेंगे, हम ये ताकि किसी भी जेन्यून वोटर का नाम ना कटे। और सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि अगर किसी का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है तो मैं इसकी मुखालिफत इस बुनियाद पर करता हूँ SIR की कि इलेक्शन कमीशन कोई अख्तियार नहीं है मेरी सिटीज़नशिप चेक करने का। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का NRC रूल्स के तहत है। वो ECI कैसा करेगा। और फिर अफसोस की बात यह है कि एक नेवी के वाइस एडमिरल को नोटिस चले गई।
गोवा के एक एक्स एमपी को नोटिस चलेगी कि आप आके बताओ कि आप सिटीजन है। अरे एमपी है, उन एक्स एमपी है, हाँ खैर उनका बोल सकते कि उन्होंने है संभल के और बंगाल को खेल रहे, तो मगर ये एक एक्स एमपी, और फिर आप एक नेवी के इतने बड़े ओहदे पे एक आदमी रह चुके हैं। तो हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि एसआईआर में जो 2002 का वोटर लिस्ट है उसमें जहाँ कहीं भी होगा तेलंगाना या देश में 2002 एक बेंचमार्क बना दिए, तो उसमें जिसका नाम है उनका भी नाम लिखना है, उनका नाम इलेक्टोरल सर्टिफिकेट लेके आपके बेटा बेटी का नाम डलवाइए। और जो 10 डॉक्यूमेंट्स है, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को बोला हूँ कि जितने गवर्नमेंट के मी सेवा सेंटर्स है जहाँ से आप 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता, उसको पब्लिक अगर अप्लाई करेंगे तो आप प्लीज़ उसको दीजिए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स लगा के उनका नाम शामिल किया जा सकता। अब नहीं मालूम गवर्नमेंट इस पे हमारी रिक्वेस्ट पर, रिप्रेजेंटेशन पर क्या एक्शन ली, वो तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को। मगर तेलंगाना में जो बोल रहे, जब भी एसआईआर होगा हमारी पार्टी पूरा उसमें ताउन पेश करेगी और हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि किसी का नाम, जेन्यून वोटर का नाम ना कटे, क्योंकि इसका रास ताल्लुक़ बड़ी बदबख्ती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि सिटीजनशिप से जोड़ दिए उसको। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के साथ हुकूमत हिंद के ताल्लुकात पर कहा कि ईरान की चाबहार बंदरगाह जहां हिंदुस्तान ने सरमायाकारी की है, इस बंदरगाह के जरिए हिंदुस्तान अफगानिस्तान और वस्त एशियाई जमहूरिया की रियासतों तक रसाई हासिल कर सकता है। उन्होंने हुकूमत हिंद से कहा कि वो इस मामले में किसी बैरूनी दबाव को हरगिज कबूल न करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ आराजी को वापस लेने हुकूमत तेलंगाना की नोटिस पर सदर मजलिस ने कहा कि यह आराजी यूनिवर्सिटी की है, इस आराजी को यूनिवर्सिटी तरक्की दे, किसी कानूनी इदारे के हवाले न किया जाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कहा कि वो इस यूनिवर्सिटी के उर्दू किरदार की हिफाजत करें। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बरगुलाराम कृष्णा राव के बाद 75 बरस के तवील वक्फे के बाद महबूबनगर जिले को वजीर आला मिला है और इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए जिले की हमजह तरक्की के लिए वो पुरअज़्म हैं। महबूबनगर जिले में IIIT के संग बुनियाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में तालीमी और आबपाशी मंसूबों को फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। वज़ीर आला ने जोर देते हुए कहा कि तालीम ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगन, मेहनत और मजबूत इरादा ज़रूरी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हवाला देते हुए कहा कि अचम्पेट असम्बली हल्के के एक दूर दराज गांव से ताल्लुक़ रखने के बावजूद 17 बरसों के सियासी सफ़र में वो वज़ीर आला बने, जिसमें अवाम और कायदीन के ताउन का अहम रोल रहा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि माजी में ज़मीन से महरूम गरीबों, आदिवासियों, कबायलियों और दलितों में ज़मीनें तकसीम की गईं, मगर आज गरीबों को मकानात के पट्टे देने के लिए ज़मीन की कमी दरपेश है। इसलिए तालीम ही वाहिद रास्ता है जो नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल की जानिब ले जा सकता है। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत तालीम को वरीन तरजीह दे रही है और 200 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड स्कूल तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तालीम के जरिए ही मौक़े हासिल होते हैं और मुस्तकबिल भी तालीम पर ही मुनहसर है। महबूबनगर जिले में मजीद तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे ताकि तलबा को बेहतर सहूलतें मैसर आएँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बगैर लगन के हासिल की गई तालीम ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं देती, जबकि तालीम ही माशरे में इज़्ज़त और वक़ार दिलाती है। उन्होंने बताया कि सिविल सर्विस के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को भी माली मदद फराहम की जा रही है। आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि 1 साल के अंदर IIIT की इमारत मुकम्मल कर ली जाएगी और अवाम से अपील की कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करें और तालीम को अपना शिआर बनाएं। तेलंगाना के बलदियाती इंतखाबात के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और सदूरनशीन के ओहदों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को क़तई शक्ल दे दी गई है। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की डायरेक्टर श्रीदेवी ने हफ्ते को तहफ़्फ़ुज़ात की क़तई फ़हरिस्त जारी की। कॉरपोरेशन में 50% ख़वातीन के लिए मख्तस किए गए हैं। पहले ST और ST के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़तियत दी गई। कुरानदाजी के ज़रिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात ख़वातीन के लिए मख्तस किए गए हैं। रियासत के 10 कॉरपोरेशंस के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को इस तरह से क़तियत दी गई है। 5 जनरल के लिए मख्तस किए गए हैं,
SC और ST के लिए 1-1 और मेयर के 3 ओहदे BC खवातीन के लिए मख्तस किए गए हैं। कोत्तागुड़म कॉर्पोरेशन ST जनरल, रामागुंडम कॉर्पोरेशन SC जनरल, महबूबनगर कॉर्पोरेशन BC विमेन, मंचिरियाल करीमनगर BC जनरल, वरंगल कॉर्पोरेशन जनरल, खम्मम निजामाबाद ग्रेटर हैदराबाद खवातीन जनरल के लिए मख्तस किए गए हैं। वरंगल कॉर्पोरेशन को गैर महफूज रखा गया है। नलगुंडा खवातीन जनरल के लिए मख्तस किया गया है। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिला नलगुंडा में 20 करोड़ रुपए की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी ने कहा कि उनकी दरख्वास्त पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने म्यूनसिपैलिटी को कॉरपोरेशन का दर्जा दिया। रियासती वजीर ने वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि आइंदा बलदी इंतखाबात में नलगुंडा कॉरपोरेशन के तमाम वार्ड्स पर कामयाबी हासिल करते हुए वजीर आला को तोहफा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब चूंकि नलगुंडा कॉरपोरेशन है, इसलिए मरकज से फंड्स लाने का भी मौका है। रियासती वजीर ने अवाम से नलगुंडा की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम सियासत से बालातर होकर जिले की तरक्की के लिए काम करेंगे। गरीबों के लिए इंदिरमा मकानात बनाए जाएंगे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत अहमकों के हाथ में पत्थर की तरह हो गई है। पार्टी कायदीन के साथ मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि तारीख में तोगलक का अक्सर जिक्र लोग पढ़ा करते हैं और आज रेवंत रेड्डी हुकूमत को देखकर लोग तोगलक को याद करते हैं। कांग्रेस ने 6 वादों के अलावा 420 वादे करते हुए इख्तिदार हासिल किया। आज वादों को फरामोश कर दिया गया और सिर्फ अवाम को गुमराह किया जा रहा है। पहले TS को हटाकर TG किया गया, तेलंगाना तल्ली को तब्दील कर दिया गया, काकतिया कलातोरणम और चार मीनार को भी सरकारी लोगों से निकाल देने की कोशिश की गई। हुकूमत को बताना चाहिए कि इन इक़दामात से अवाम को क्या फायदा होगा। रेवंत रेड्डी ने पागलपन के सिवाय अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना के अवाम की वजूद की अलामत है, लेकिन आज सिकंदराबाद की तारीखी शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। सिकंदराबाद के तमाम तबकात मुत्तहिद हैं और हुकूमत के फैसले के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि रेवंत रेड्डी हमेशा मौजूदा ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। KTR ने कहा कि हम अदालत जाएंगे और सिकंदराबाद के लिए अजीम रैली निकालेंगे। BRS पार्टी की सिकंदराबाद बचाओ रैली को पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। आज सुबह BRS के कारकुन जब रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। BRS के बास कारकुन सियाह झंडियां हाथ में लिए सियाह बैचेस लगाकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तकम्पील के मनाजिर देखे गए। BRS कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ BRS पार्टी के लीडर T श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि जुमे की रात 10:40 पर रैली की इजाजत देने से इनकार किया गया। हमने 5 दिन कबल पुलिस से इजाजत तलब की थी, लेकिन लम्हे आखिर में इजाजत देने से इनकार किया गया। अगर पहले इजाजत नहीं दी जाती तो हम अदालत से रुजू हो सकते थे। श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी बगैर इजाजत सेक्रेटेरिएट के सामने रैली निकाल सकते हैं, तो हमें क्यों इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ KTR ने कहा कि तेलंगाना में सहाफियों को दहशतगर्दों और मुजरिमों की तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने एक मुहावरे का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप जोकर्स को मुंतखब करेंगे तो वो हुकूमत नहीं सर्कस चलाएंगे। कांग्रेस जहां भी जाती है इंदिरमा हुकूमत का दावा करती है। आज राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत क्या इनराफ के कानून की पाबंदी कर रही है। उन्होंने स्पीकर को भी दृष्ट राज से ताबीर किया। पूरे मीडिया में ये तस्वीर सामने आई थी कि इनराफ करने वालों ने कांग्रेस का खंडवा पहना, लेकिन स्पीकर इसे सबूत नहीं मानते। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इंचार्ज हल्के चार मीनार मोहसिन बलाला और साबिक रुकन असम्बली वारिस पठान ने मुंबई और थाने के नौमंतखबा कॉरपोरेटर्स से मुलाकात की। मोहसिन बलाला ने नौमंतखबा कॉरपोरेटर्स को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत से वाकिफ करवाया। उन्होंने कॉरपोरेटर को मशवरा दिया कि वार्ड्स का मुसलसल दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत करें, इन मसाइल की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाएं। मोहसिन बलाला ने सदर मजलिस का हवाला देते हुए कहा कि बिला लिहाज तबका अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह दें। अवाम ने भरोसा और एतमाद के साथ मुंतखब किया है, उनकी तवक्कात को पूरा करें। साबिक रुकन असम्बली वारिस पठान ने भी मुंतखबा कॉरपोरेटर्स को अवामी खिदमत के लिए वक्फ हो जाने का मशवरा दिया।
संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद आने वाले अफराद कुल हिंद सनती नुमाइश का बड़े जोश और खरोश के साथ मजा ले रहे हैं। पहले ही से नुमाइश में बैरूनी मुल्क से आने वाले सयाह तारीखी मुकामात के साथ अब वो जनवरी के महीने से शुरू होने वाली नुमाइश की भी तफरीह कर रहे हैं, जहां जिंदगी के तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली मालूमात और अशिया बड़ी आसानी से दस्तयाब हो सकते हैं। नुमाइश में लगाई जाने वाली स्टॉल्स का अलॉटमेंट पहले से ही किया जाता है। स्टॉल्स लगाने वाले कम कीमत में ही सारी तैयारियां कर लेते हैं ताकि नुमाइश शुरू होते ही उनका कारोबार शुरू हो जाए। आरटीसी की जानिब से बसों की तादाद में इजाफा किया जाए तो दूर दराज से आने वालों को सहूलत हो सकती है। नुमाइश में मौत के कुएं में पेश किए जाने वाले पुरखतर मनाजिर से मुशाहिदीन दम बकुद हो जाते हैं, क्योंकि कार और मोटरसाइकिल के ड्राइवर्स अपनी जान को जोखम में डालकर गाड़ियां चलाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को बड़ा मजा आता है। नुमाइश में मुख्तलिफ झूलों की वजह से बच्चे इसमें बैठने के लिए बड़ी ख्वाहिश करते हैं, जिसकी वजह से झूलों के पास बच्चों का काफी हुजूम रहता है। वालिदैन और सरपरस्त भी बच्चों के साथ देते हुए वो भी झूलों से लुत्फ अंदोज होते हैं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा को शब मेराज के मौके पर जलसे शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशू व खुजू के साथ मनाया गया। हाफिज कारी शेख मोहम्मद अली मुअज्जन मक्का मस्जिद की कलाम पाक की तिलावत से जलसे का आगाज हुआ। मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल अली सिद्दीकी इमाम मक्का मस्जिद मौलाना सैयद अली हुसैनी कादरी ने फ़ज़ाइल शब मेराज बयान किए। मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की बड़ी तादाद शब मेराज के मौके पर इबादतों में मसरूफ नजर आई। तारीखी मक्का मस्जिद को बरक़ी खमखमों से सजाया गया था, जो रूह परवर मंजर पेश कर रहा था। डीसीपी चारमीनार जोन खारे किरण प्रभाकर ने शब मेराजुन नबी के मौके पर जोन के इलाकों में पुलिस इंतजामात की निगरानी की। मक्का मस्जिद के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी खारे किरण प्रभाकर ने शब मेराज की मुबारकबाद दी और शब मेराज की अहमियत से भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अमन व कानून की बरकरारी के लिए पूरी तरह से चौकस है। डीसीपी ने अवाम से पुलिस के साथ ताउन करने, ट्रैफिक कवायद की पाबंदी पर भी जोर दिया। हैदराबाद किले गोलकुंडा गोल्फ कोर्स के पास जारी हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के दौरान एक हॉट एयर बैलून को नेकनामपुर झील के पास हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जाता है कि तकनीकी खराबी की वजह से बैलून को लैंडिंग करनी पड़ी। जिस वक्त ये खराबी हुई, बैलून में 3 मुसाफिरीन सवार थे, लेकिन सभी तीनों महफूज रहे। शराब के गिलास के लिए हुए झगड़े के बाद भाई ने भाई को छत से नीचे फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 सौतेले भाइयों नाचारम एसटी कॉलोनी के रहने वाले 30 साला स्टॉफोर्ड वेंस सीयर्स और 28 साला लियोनार्ड एंजेलियो सीयर्स दोनों ने जुमेरात की निस शब को इकट्ठे शराब पी। इसी दौरान उनके दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ। माजी में उनके दरमियान होने वाले खानदानी झगड़ों को याद करते हुए इन दोनों के दरमियान आपस में झगड़ा बढ़ गया। गुस्से के आलम में छोटे भाई ने बड़े भाई को 3 मंजिला इमारत से नीचे ढकेल दिया। यह अफसोसनाक वाकया जुमा के रोज नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। शराब के नशे में धुत छोटे भाई लियोनार्ड ने बड़े भाई रोहिंस को जबरदस्ती छत से नीचे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। बताया जा रहा है कि शराब का गिलास शेयर करने के मसले पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ, जो शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को नीचे फेंक दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की जाली करेंसी जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फेक करेंसी के रैकेट के मुलजिमीन बाबूलाल, धर्मवीर और मोहम्मद ओवैस की शनाख्त हुई है। मोहम्मद ओवैस सूडान का शहरी है। ये तीनों पैरामेंट कॉलोनी नानल नगर गुड्डेमल कपूर में जब्त शुदा जाली करेंसी के साथ रहते थे। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में हिट एंड रन का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि तेज रफ्तार कार ने 28 साला नौजवान सुनील को टक्कर दे दी और यह भी पता चला है कि तकरीबन 100 मीटर तक इस नौजवान को घसीटा गया।
زخمی حالت میں نوجوان کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کا CCTV بھی سامنے آیا ہے۔ سعید آباد پولیس نے کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حیدرآباد یوسف گوڑہ کے کرشنا نگر میں واشنگ مشین دھماکے سے پھٹ پڑا۔ بتایا گیا ہے کہ جین مندر کے قریب مکان میں مشین کے پھٹنے سے گھر میں موجود بعض سامان کو نقصان پہنچا، تاہم اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، VIP شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل VIP نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ مہاراشٹرا میں مجلس کی کامیابی پارٹی کی عوامی مقبولیت کا ثبوت۔ BJP ریاستوں میں مسلمانوں پر مظالم، تلنگانہ میں SIR کے لیے شعور آگاہی، صدر مجلس کی پریس کانفرنس۔ تعلیم ہی تمام مسائل کا واحد حل، تعلیم ہی معاشرے میں عزت و وقار کی ضامن۔ محبوب نگر میں مزید تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں گے، تعلیم کو حکومت کی اولین ترجیح۔ محبوب نگر میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ تلنگانہ بلدیاتی انتخابات کے لیے میونسپل کارپوریشنز کے میئر اور صدور نشین کے تحفظات کو خطیت، خواتین کو 50% تحفظات۔ حیدرآباد میئر کا عہدہ خواتین جنرل کے لیے مختص۔
اور ناچارم میں شراب کی گلاس کے لیے بھائی نے بھائی کو چھت سے نیچے پھینک ڈالا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا فی الحال ہی اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔